Let's see the three models of cell membrane. First, see the sandwich model. This model was proposed by Daniel and Davison. This model states that plasma membrane is trilaminar tripartite and is lipoproteinous in nature. Okay. The main part is that this model states that plasma membrane is a compact structure. Plasma membrane is compact structure in which in between the two protein layer, phospholipid layer is packed as like sandwich. जैसे हम लोग सैंडविच में स्टफ को दो ब्रेड के बीच में स्टफ को टाइटली पैक करते हैं, वैसे यहाँ पर ये मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि दो प्रोटीन लेयर के बीच में जो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर हैं वो कॉम्पैक्टली यहाँ पर स्टफ के जैसा पैक हो जाता है और सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. सो ये सैंडविच मॉडल है. इस मॉडल को हम PLLP मॉडल भी कहते हैं. ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बताता है, जिसके कारण अगर ये इतना कॉम्पैक्ट है तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ये कैसे करेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा ये क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण सैंडविच मॉडल हमारा रिजेक्ट हो जाता है. तो स्पेशल फीचर्स सारे देख लेते हैं कि सैंडविच मॉडल का क्या है. तो सैंडविच मॉडल सेम जितनी चीज़ें आपने पहले सुनी थी, ट्राइलैमिनर है, ट्राइपार्टाइट है, फॉस्फोलिपिड का बना है. नई बात क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड PLLP मॉडल. Phospholipid is compactly packed, so does not explain its functional aspect. So the model fails to explain the function of cell membrane, that is transport of molecules. So this model was rejected. Next model is unit membrane model. This model was proposed by Robertson. It is like sandwich model, similar to sandwich model, except that it states that the protein which is present in cell membrane is not a rounded shaped protein, but it is a thread-like protein which is called fibrous protein or extended protein. तो फर्स्ट जो डिफरेंस बताया वो कि सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन ग्लोबुलर ना होकर के फाइब्रस है, धागे के जैसा है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही कि सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की बाउंड्री है और इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऐसी कई सारी चीजें हैं. और इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स इसके साइटोप्लाज्म में लाई करेंगे. तो ये मॉडल का इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने कहा कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, प्लास्टिड का मेम्ब्रेन हो, गोल्गी का मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक का मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन अगर है तो ऑल दिस मेम्ब्रेन are similar in structure, that is made up of lipid and protein, and it is trilaminar, and so this model is called unit membrane model. Unit मतलब हर जगह पर present है ये. तो proposed by Robertson, it states that the protein present in cell membrane is फाइब्रस. दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल बायो मेम्ब्रेन्स, जितने भी लिविंग सिस्टम में मेम्ब्रेन्स हैं, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड composition. So this model is called unit membrane model, but this model also fails to explain the functional aspect of cell membrane, that is transportation. So this model was rejected. After that, another model was proposed by Singer and Nicholson. This model is called fluid mosaic model, and it is the best model which not only explains the structure but it also explains the functional aspect of cell membrane, that is how it helps in transport of substance.
The membrane resembles to the sandwich model, but some new features are also added in this model. This model states that cell membrane is trilaminar, tripartite lipoproteinous. But this model states that proteins are of two types. In the cell membrane, proteins are of two types. This model states that in the cell membrane, proteins are of two types. यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन हैं और जो प्रोटीन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप के हैं उसका नाम क्या बताया? तो ये प्रोटीन को कहा एक्सट्रिंसिक. दिस प्रोटीन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो दो लेयर में प्रेजेंट है, आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इनर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इसके अलावा इट कंटेन्स another protein which is called intrinsic protein. Intrinsic protein or carrier protein और tunnel protein. और ये प्रोटीन कैसा है? दिस प्रोटीन प्रोजेक्ट्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. यानी ये ऐसा प्रोटीन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं तो ये प्रोटीन कैसा? ये प्रोटीन हमारे पास मान लो ये सब वाटर है, ये कैसा? ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोजेक्ट करता है, यानी एक हिस्सा इसका बाहर होता है, एक हिस्सा इसका अंदर होता है. इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि अपने बीच से स्पेस बना सकता है और स्पेस बना करके ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है. ये ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराएगा जो फॉस्फोलिपिड से होकर नहीं जा सकता, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के पास क्या प्रॉपर्टी थी? ये वाटर गेटिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, जिसके कारण ऐसी चीज़ें जो कि वाटर में सॉल्युबल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती. तो ऐसे कंडीशन में उसको ले जाने के लिए इंट्रिंसिक प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, जो चैनल का फॉर्मेशन करता है फॉस्फोलिपिड से बचाकर ऐसे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक. नेक्स्ट क्या कहा? अगर ये अपने शेप को चेंज करके बीच में टनल बना सकता है, पाइप बना सकता है, तो ऑब्वियस है कि ये पार्ट इधर खिसकता है, ये पार्ट इधर खिसकता है, तभी कोई मॉलिक्यूल इससे होकर क्रॉस करेगा. तो ये इधर इधर तब खिसक सकता है जब इसके मॉलिक्यूल के बीच में यानी फॉस्फोलिपिड के बीच में गैप हो, स्पेस हो. तो यहाँ पर इसने बताया कि फॉस्फोलिपिड कंपैक्टली पैक्ड नहीं है, बल्कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में इंटर स्पेसेस प्रेजेंट है. इंटर स्पेसेस थोड़ा है, बहुत अधिक नहीं है. और इस इंटर स्पेस के होने के कारण जब ये टनल बनाता है और ये पार्ट इधर खिसकता है, तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल भी अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आ सकता है, या ये ऊपर से नीचे आ सकता है. तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा इंटर स्पेस है. अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटर स्पेस नहीं होता है तो उसको सॉलिड कहते हैं. इंटर स्पेस कम होता है तो उसको लिक्विड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, और बहुत होता है तो उसको गैस कहते हैं. यहाँ पर बहुत नहीं है बल्कि थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए ये फ्लूइड है, लिक्विड है. सो दिस मॉडल इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. और ये मॉडल ये कहता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं जो फॉस्फोलिपिड से नहीं जा सकता, तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये कैरियर प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन को आर पार ले जाता है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाता है और मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. तो फॉस्फोलिपिड इसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए खिसक जाता है अपने पोजीशन से, क्योंकि इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है. सो दिस मॉडल इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड कैसा है? ये फ्लूइडी नेचर का है और इस फ्लूइड पर ये छोटे छोटे प्रोटीन के पैचेज तैर रहे होते हैं, इसलिए इसको मोजाइक जैसे पैटर्न को बनाता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं. ठीक है. दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड. इन द सी ऑफ लिपिड, इस मॉडल को हम लोग कहते हैं प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड. लिपिड के समुद्र में ये प्रोटीन फ्लोट कर रहे होते हैं, वैसे ही जैसे वाटर के ऊपर आप आइस क्यूब को डालते हैं तो आइस क्यूब उस पर फ्लोट करता है, वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन इस फॉस्फोलिपिड जो कि लिक्विड नेचर का इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है. ठीक है. इस मॉडल में ये भी कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मतलब लिक्विड इसलिए क्योंकि ये लिक्विड नेचर को बताता है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो प्रोटीन और लिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट. इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के साथ जुड़ा हो सकता है या लिपिड के साथ जुड़ा हो सकता है.
अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये लिपिड के साथ जुड़ा है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, तब इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो क्या था ये? फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज proposed by Singer and Nicholson. This is the best model which not only explain the structure but it also explain the functional aspect of cell membrane. According to this model, cell membrane is lipoproteinous, it is tripartite and it contains two types of protein, extrinsic protein and intrinsic protein. Extrinsic protein forms outer and inner layer. However, intrinsic protein projects inside the cell membrane from outside to inner side. In between the phospholipid molecule interspaces are present, so phospholipid molecule acts as fluid. So this model is called fluid mosaic model. When some molecule transport from outer side to inner side, then the carrier protein or intrinsic protein or tunnel protein forms a channel for the transport of molecule, due to which phospholipid molecule can change its position. Hence, the transport of molecule becomes possible. Clear? So this model is widely accepted model without any objection. Clear? In the next part, I will discuss about the function, transport of molecule which occurs through cell membrane.